This conference will now be recorded. Sonu, name should be a this thing like tag should be like keys, name and value should be name that description. Okay. तो मैं तो Key बस should ये be देना चाह रहा था like key should be like identifier and the value should be description. Okay. So I can write anything, right? Best practice is you enter key as name and value as web server. Okay. Perfect. Thanks. Yeah, makes sense. अभी launch कर दूं? I think it's good. We have HTTP port. Yeah. Now, if you don't have any existing key, just go ahead and create a new one. Yeah, I don't have. अभी ये पटीजन से कनेक्ट करूं क्या इसे? पीपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके? Yeah, we can connect to console, we can connect to CLI, no? Both we can do. Or we can connect it from here as well directly, right? Yes. Yes. Now it has to pass that mandatory 2 status checks. Is it passed? I think so. You want me to go back? I think it was those two initializing. Okay. It's initializing. Yes. You can select that server and below you'll get a stat options like at what stage it is there. Just select that server. Down you will see all options. Go to status check. The status check is coming here. Oh, here. Okay. Yeah. Now Initializing same what in there. Those two are mandatory basic checks. It Yeah, will check. say 2 by 2. Right? Yeah. Yes. One is it will check entire hardware and one is it will check entire configuration. Okay. I actually want to see. Linux. Okay. Perfect. Yeah, it is still initializing, Sereno.
Yeah, it just takes just 2 to 5 minutes. That's it. Okay. Oh yeah, it's passed now. Yeah, now you can connect. Okay. So I should use, first I have to do all those yum updates and stuff, right? Correct. Best practice is whenever you installed any Linux platform, you need to do the updates. Yeah. Sudo By default, it sudo is easy hyphen to I. use. So Yes, first you yes. need to You come need to to, switch to okay. root user. Sudo hyphen I. This. Yes. Yeah. Okay, so I'm on Now root now. yum update then. So now I should create. Now you need to enable HTTPD task. So just type systemctl start HTTPD. It is in No continuous. space. Systemctl is in continuous. Huh? Systemctl is single command. Okay, okay, sorry. Yeah. Enter. No, HTTPD. Yes. Yeah. So before start, you need to install it. So no. Okay. Yeah. So like install. What was the command for that? Yum install HTTPD. So if you see the error message here, it says unit not Not found. found. So that means software is not installed. Correct. Not found. Yes. Okay. Are you there? Hello. Tanuj, are you there? Yes. Who Okay. cannot Yeah. listen? Yeah. Now it Just is installed. so Tanuj, are you there? आवाज आ रही है मेरी? Yeah, Vishant. हाँ समझ में आ रहा है. आई थिंक गोइंग गुड. और क्या कोई चैलेंज? वॉइस नहीं आती है यार, पता नहीं लगता है. नहीं विशाल, आई एम नॉट वेल. मैं और इसलिए नहीं बोल रहा थोड़ा. नो इशू. सो अभी मतलब जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, यू आर गेटिंग दैट राइट? करेक्ट विशाल. सो वीकेंड में एक बार प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट असाइनमेंट आप ही के पास आने वाला है. ठीक है. सोनू Sure, अब sure. सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD करके देखना एक बार, वो दिखा देगा कि रनिंग है या नहीं. Okay. Okay. Running. ओके. और आप इसके साथ में वो भी कर सकते हो, सिस्टम CTL इनेबल HTTPD, क्योंकि रिस्टार्ट के बाद में नहीं तो वो क्या होगा, बंद हो जाती है. Oh, okay. टू मेक इट Create system link from this one. I don't know.
ओके, अब यहाँ पे आप मतलब या तो यहाँ से भी कर्ल कमांड और जो आपका लिंक होगा ना दिखा रहा है वो, अगर कर्ल स्पेस लिंक डालोगे तो वो दिखा देगा कि आपका वेब पेज चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके जो आपकी EC2 इंस्टेंस का वो है ना प्रॉपर्टीज, उसमें URL दे रहा होगा। हाँ हाँ तो वो कर्ल स्पेस वो URL डाल के एक बार देख लेना Public सर। IP भी you can use it. यस, सॉरी Public पब्लिक IP आईपी address you can use it. हाँ हाँ ओके गुड Just गुड। paste it in any browser or you can see in curl command also. यस This is default test page, and may just check the path where it is where the default index page is there. No, just see that if you are the website administrator, you may now add the content बोल के है ना उसमें वो पेज में यस उधर यहाँ एक पे डायरेक्टरी बता रहा है ना, एक डायरेक्टरी ये बता रहा है ना ऊपर, हाँ नहीं ऊपर ऊपर नहीं ऊपर, कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी दिस ये वाला ना हाँ वही। अगर अब अपन कुछ कंटेंट ऐड करना बोले तो वो डायरेक्टरी में जाके उधर ऐड कर सकते हैं। ओके 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 अपने तो वो करना है क्या CD उस CD करके उस फाइल उसमें चले जाओ आप बस। डायरेक्टरी में उसमें ना हाँ जी, ये हाँ जी, एंटर मार के देखो। नहीं थोड़ा एडिशनल स्पेस ऐड हो स्पेस आ गया। गया। हाँ स्पेस तो दिया नहीं नहीं नहीं, नहीं, पहले आप जो ज्यादा हो try- गया होगा। आप मैनुअली ट्राई करो, सीडी स्पेस स्लैश वर बोल के मारो, स्लैश स्लैश www। इसमें लाइनक्स में क्या होता ना, अगर आप स्टार्टिंग 2 लेटर्स करके टैब मारो तो बाकी पूरा आ जाता। ओके ठीक, अब मारो एंटर। हाँ अभी आया अभी मैं उस डायरेक्टरी अब में यहाँ हूँ पे आप वो कर दो वाया index.html vi No, vi VI। only vi oh sorry vi okay to open that yeah file yesterday we discussed sorry therefore हाँ, vi या टच होती है। तो वहां पे आके हम we can make the changes into it now यस, अब यहाँ पे आप आई प्रेस करके कुछ भी लिख सकते हो, मतलब दिस इज डिफॉल्ट पेज, और जो H1 वाला हेडर लगा सकते हो आप। अच्छा यहाँ पहले शुरू में ही हाँ जी, शुरू और एंड में ना हाँ, /H1 नहीं तो बंद कर देता हूँ ना यहाँ पे अभी स्लैश भी होता है आई थिंक इसमें, और H1। वो तो क्लोज करने से पहले होता है ना शायद क्लोज करने पे हाँ, यहाँ पर H जहाँ आपने लिखा है ना, वहां पे हाँ H1 कर देना। हेडिंग का जो टाइप होता है, नंबर होते हैं, इसको H1 कर देना बस। और क्लोजिंग पे आपने सही किया /HO, वो ठीक है। वो यहाँ पे H1 यहाँ पे भी तो H1 करना पड़ेगा ना फिर /H1 बिल्कुल बिल्कुल। तो W से क्विट कर दूं ना हाँ नहीं, पहले इसमें क्या है, सेमीकोलन मारना एस्केप पड़ता है। दबाओ, कॉलन सेमीकोलन WQ और एक्सक्लेमेशन, तो कहता वो सेव कर देता उस फाइल को फिर। हाँ तो एस्केप कर दिया अभी तो मैंने वापस इंटर करूं नहीं नहीं, कॉलन नहीं मारो, नहीं, वो करो ओके ओके कॉलन कॉलन सॉरी तो WQ। WQ यस आई एक एक्सक्लेमेशन। ओके यस एंटर एंटर, हाँ जी। ओके नाउ आई कैन चेक दैट वन अच्छा, राइट एक करेक्शन है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन जरूरी नहीं है। जब आप सेव कर रहे हो तो एस्केप W से हो जाता है ओके क्विट करके हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन आपको तब चाहिए जब आपको फाइल विदाउट सेव करना होता है, ठीक है।
तो ओके, ये एक थोड़ा confusion है। वो हो गया चेंज। अब प्रशांत और कुछ करना आगे? वाओ, फाइल हो गई अभी रेडी। आपने गुड। अभी आपने वो बनाई है ना, मतलब एक सिस्टम रेडी किया, अब इसकी आपको एएमआई बनानी है, देन एएम नीड टू मूव दैट एएमआई टू डिफरेंट रीजन एंड उस पे वो तो जाके फिर बताया आपको वो करना है। प्रशांत ने, वो करने के लिए नहीं बोला ना। असाइनमेंट चेक करो आई थिंक चैट चैट विंडो। अच्छा, वो पूरा असाइनमेंट करता है। अभी मुझे लगा अभी तो वेब पेज बनाने के लिए बोला था ना। ओके। एक्चुअली ये क्या, आप एक रीजन में आपकी सिस्टम बन गया है ना। हाँ, हाँ जी, तो अब दोबारा EC2 में इंस्टेंस में जाओ। चैट विंडो चेक करो आप, उसमें जो है असाइनमेंट वो करना है। सेकंड सर्वर क्रिएट होगा, दैट विल बी इन मुंबई। ओके इसको सोनू आप सिलेक्ट करके ना एएमआई बना लो आप। ओके। यहाँ पे एम आई भी बनाऊं अभी? हाँ, उसमें एक्शन में जाके। ओ, एक्शन में जाके। ओके। हाँ जी, एएमआई में तो आपकी एमआईज दिखाएगा ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग एमआईज अगर है। नहीं नहीं, अभी नहीं आया, ही नहीं आया, नहीं है। पहले आपकी नहीं EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। तो वो सिलेक्ट तो यहीं से होगी ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो वो जो चेक बॉक्स सेट करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, हाँ वाला ये तो किया हुआ है सिलेक्ट यहाँ तो। अब एक्शन एक्शन को ऊपर आ रहा है ना ये। ड्रॉप डाउन है ना, लॉन्च इंस्टेंस के बगल में एक्शन। हाँ हाँ, ये वाला। सॉरी। इमेज एंड टेम्पलेट में जाओ, क्रिएट इमेज। फर्स्ट ऑप्शन। यस, ये कुछ भी नाम दे दो आप, माई लिनक्स सर्वर या कुछ भी नेम तो। और सिस्टर सर्वर। रिबूट नो। ये ठीक है। क्या ऐड करने बाकी की आप जरूरत है? मतलब नहीं, डिफॉल्ट के साथ जा सकते हो। ओके ओके, सो क्रिएट इमेज देन। यस, हाँ, अब AMI में जाके आप वो कर सकते हो। अब यहाँ से लॉन्च कर देंगे सर्वर वहाँ मुंबई में। नहीं 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 नहीं, अभी बनने दो पहले इसको स्टेट। मुंबई रीजन। अभी आप कोई दूसरे उसमें टैग टॉगल करके ना, फिर तो रिफ्रेश हो जाता है वो, आई थिंक विद इन हाँ 1 हाँ, और 2 सही कह मिनट रहे हो। बन जाती हाँ हाँ, मैं एक बार दोबारा से इंस्टेंस पे जाता हूँ और फिर एम आई पे जाता हूँ। ये हो रहा है। ये अलार्म स्टेटस में ये कुछ यहाँ पे, ये अभी भी अपडेट हो रहा है? वो वैसे रिफ्रेश कर रहा है, अगर अलार्म होगा तो दो शो कर देगा, नहीं तो एक तरह से होता है ना कि रिफ्रेश कर रहा है कि कोई न्यू अलार्म तो नहीं है सिस्टम पे, उस तरह ओके, से। हाँ, नो अलार्म अभी हो गया। ठीक है सर, थैंक्स। ओके, तो अभी दोबारा से एम आई पे।
आई थिंक बहुत दिखा टाइम तो लेगा है लग रहा है। सक्सेसफुली क्रिएटेड। नहीं पेंडिंग अभी तो चल ही रहा है, अभी तो नहीं हुआ, यहाँ से रिफ्रेश हाँ हो वही जाएगा। रिफ्रेश नहीं हुआ शायद, वो हाँ ऊपर जो आपका ग्रीन कलर का नोटिफिकेशन आ रहा था उसमें दिखा रहा था कि भाई सक्सेसफुली क्रिएटेड, बट मे भी कुछ स्टेप बचा हो। अभी हो गया, हाँ अवेलेबल। बन गई। अभी नाउ अभी गो टू एक्शन हाँ जी, एक्शन में जाइए लॉन्च कर दूं? और इसमें ऑप्शन होगा नहीं कॉपी EMI। ओके, तो ये मुंबई। यस, नाउ जिस भी रीजन में आपने ले जानी है वहां पे आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मान लो अभी यहाँ पे लॉन्च कर देते आप सोनू, तो हाँ ये सर्वर होता, नया सर्वर वो कहाँ पर रेडी होता? ओयो में। OIO में। क्लियर है ना? ओके हाँ। अब आप अपना रीजन वो सिलेक्ट कर लो, मुंबई। अब वहां पे दिखाएगा अच्छा कि वहां पे दिखाई इन प्रोग्रेस देगा, है। वो सही बात करेगा। हाँ ओके, तो एशिया मुंबई ये वाला, तो उसकी अगर मैं मतलब उसके वेब सर्वर में जाकर खोलूंगा तो वही खुलेगा माय वेब पेज, वो तो नहीं होगा ना, कॉपी है तो। नहीं अभी पहले आपको वहां पे EC2 इंस्टेंस एक न्यू बनानी पड़ेगी ना इससे। ये तो सिर्फ AMI एक तरह से इमेज है आपकी बस। तो वो इजी, यू डू नॉट हैव इंस्टेंस इन दिस रीजन। AMI में यस, गो टू ओके यहाँ AMI। EMI में आई है अभी वो, ओके, तो फिर यहाँ से इंस्टेंस। ये भी तो मुंबई में 5 लॉन्च मिनट, हो जाएगा। 2-4 मिनट। yes। हाँ, यहाँ से रिफ्रेश करता रहूंगा। थोड़ी देर लेगा, ये तो अभी थोड़ा अगर मैं टाइम यहाँ लेता है। लॉन्च करूंगा तो वो मुंबई में हो जाएगा लॉन्च। यस, देन आप मतलब जो मुंबई वाला सर्वर है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको जैसे मान लीजिए वहाँ का आपने फर्स्ट सर्वर या लिनक्स सर्वर या आप मुंबई या इंडिया सर्वर बता, अकॉर्डिंगली आप उसको टैग कर सकते हो कि भाई इंडिया का सर्वर है, ये इंडिया वेब सर्वर है जो। ओके, तो लेकिन इसकी इसकी अगर मैं इसको यहाँ पे जाके खोलता हूँ तो ये यही पेज थोड़े मिलेगा, यही मिलेगा। पेज तो हमारा सही हाँ, क्योंकि वो जो आपने AMI तो बनाई वो एक तरह से उस टाइम पे जो सर्वर पे जो भी था कॉन्फ़िगरेशन वो सेम एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो आईपी एड्रेस, ओके ओके। IP एड्रेस डिफरेंट होगा क्योंकि वो तो IP एड्रेस तो एक तरह वो है ना, वेब फ्लश पेज होगा। ऐसे ही खुलेगा, फर्स्ट वेब पेज लाइक दिस ओनली। हाँ जी। बट ये इमेज को हमें मतलब इमेज तो हमने कॉपी कर लिया, मतलब AMI तो बना लिया, बट हाँ अभी हमें नया इंस्टेंस वहां पर बना के उस इमेज को उस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? मतलब वो हमने नहीं किया। वही तो है इसके बाद, मतलब ये सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्शन पे लॉन्च लॉन्च, तो वो EC2 ही लॉन्च हो जाएगा इस इमेज से मुंबई में। अरे डायरेक्ट लॉन्च हो जाएगा, करेक्ट ना? सेम। हाँ हाँ, अभी 1-2 मिनट वेट कर लो, अभी तो शायद वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो प्रशांत, कैन वी नॉट जस्ट कनेक्टेड जस्ट लाइक फ्रॉम द इनसाइड द कंसोल, वहां पे जो हम काम करते हैं रियल लाइफ में। आई हैव नॉट वर्कड इन लाइफ ऑन अमेज़न, तो मुझे पता नहीं है, तो बट लाइक तो पट्टी और इन सब जैन की इनकी जरूरत तो नहीं होती है, यू हैव टू यूज इट। बिल्कुल बिल्कुल, वॉट एवर यू आर डूइंग, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ये रियल टाइम सिनारियो बता रहा हूँ आपको। जितना रन यहाँ पे करोगे मे भी उससे काफी कम काम करना पड़े वहां पर, बट ये सब चीजें ही वहां पे जरूरत होती है। ठीक है, जैसे एक डुप्लीकेट सर्वर चाहिए आपको, एंड दे विल टेल कि भाई हाउ टू क्रिएट अ डुप्लीकेट सर्वर, आप कैसे बनाओगे, राइट? AMI बहुत यूज होता है, राइट? सो व्हाट एवर वी आर डूइंग, ये सारा प्रोडक्शन बेस्ड है और प्रैक्टिकली यही सब काम होता है।
और नंबर ऑफ काउंट चेंज एंड हो जाएगा प्रशांत, सर्वर्स है। हाँ जी। हम्म, अच्छा एक चीज वो Yes, था sir. कि जब हम लोग कॉपी करते हैं एएमआई तो क्या इज इट मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसको वो करें इनक्रिप्ट करें या मतलब नॉर्मल कॉपी भी ठीक है? ओके नॉर्मल कॉपी ठीक है विदाउट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आपका डिसाइड होगा कि आपको इंक्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इंक्रिप्शन से क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो हर सर्वर के लिए हाँ नहीं वही चाहिए मतलब वो। मैं करेक्ट, तो वो हर ओके। सर्वर के एंड दूसरी चीज ये कि अगर हाँ। हमारी मान लिया एनवायरनमेंट में हम लोग चाहते हैं कि एक मास्टर एएमआई रखें, वो एएमआई का क्या कुछ ऐसा सीन है कि आपस में वो रेप्लिकेट हों कि भाई अगर एक एएमआई हमने अपडेट किया तो दूसरी भी हो जाए ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ होता है इसमें? नहीं, एज ऑफ नाउ मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एएमआई आपको सारी अपडेट करनी पड़ेंगी। सर्वर्स अपडेट हो जाते हैं, मतलब होता क्या है, एएमआई आपका मास्टर रोल प्ले करती है। तो यस ऑटो यस। स्केलिंग एप्लीकेशन और लॉन्च जब हम यूज करेंगे ना ऑटो स्केलिंग ग्रुप, हम्म तो वहां पे एक हम्म। मास्टर सर्वर होगा या एक एएमआई होगी जो यूज होगी, दैट विल वर्क एज ए मास्टर। तो व्हेन यू अपडेट दैट एएमआई, ओके जितने भी सर्वर्स हैं उससे एसोसिएटेड वो सारे अपडेट हो जाएंगे। ओके तो ओके मतलब अगर क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ पहले वाले सर्वर में चेंज, तो वो दूसरे हाँ, पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा? नहीं अभी नहीं होगा ना, अभी नहीं होगा, ओके क्योंकि हर सर्वर यहाँ पे डिफरेंट प्ले कर रहा है, राइट। आपका कोई मास्टर हाँ सर्वर तो है ऐसा, तो जो भी चेंजेस हैं वो रेप्लिकेट नहीं है। अभी ये सब ऑल टुगेदर हम्म, डिफरेंट है। सोनो अपन को ऑप्शन जब होता है कि अपन स्नैपचैट लाइफ साइकिल मैनेजर करे तो मालूम पड़ता। ओके ये तो T2 माइक्रो ही रहेगा। हाँ तो अभी नेक्स्ट करता हूँ, वो भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हाँ इसके बाद में जो एक्चुअली टैग और उसका आता है ना उसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि मतलब डिफरेंट रीजन में अपना नाम अगर डिफरेंट चाहे हो तो। तो इसमें भी एस टी वो तो रूल करना पड़ेगा ना? नहीं वो तो आ गया हाँ, आपका ना, वो आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें आ गया है। नहीं वो दानी कॉन्फ़िगरेशन ये में है, मगर इंस्टेंस क्रिएटर में टाइम पे अपन सिक्योरिटी ग्रुप भी वो ऐड करना पड़ता। हाँ ओके ठीक। ओ अब इसमें एक वो है कि सोनू इसमें आपको मतलब जो अगर डिफरेंट रीजन में कर रहे हो तो आपको उस रीजन में आपको जो की पेयर है वो बनाना पड़ेगा। तो वो पहले वाला एग्जिस्टिंग काम नहीं करेगा इस रीजन में है? वो आई थिंक प्रशांत क्लैरिफाई कर सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो की पेयर्स है ना इनका रीजनल वो है स्कोप है कि एक रीजन में वो करते हैं मतलब का। ओके अब प्रशांत, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? तो मतलब अब जो यहाँ पे मैं अगर नया की, सॉरी गो अहेड। जो की पेयर्स है उनका मतलब स्कोप जो है वो एक की रीजन पेयर रीजन स्पेसिफिक है या? की पेयर रीजन बेस्ड है, राइट। तो वो की अच्छा पेयर रीजन हमने बेस्ड तो यूज नया, किया था, यू विल नॉट बी एबल टू यूज, एक नया ओके क्रिएट सारे करना। यूज होगा। करेक्ट। ओके। ओके
लेकिन वहाँ रियल टाइम सिनेरियो में तो प्रशांत लाइक सिक्योरिटी और इन सबको बहुत और डीप में होता होगा ना ये तो थोड़ा। Sorry, didn't got you. What you said? क्या बोलो? इन रियल लाइफ हाँ सिनेरियो जब आप काम करते हैं तो ये तो लाइक एवरीथिंग भी इन सब पे काम करना होता होगा ना ज्यादा, और जैसे IM रोल इन सब पे सिक्योरिटी में। तो अभी तो स्टार्ट ही किया है ओके, अभी। नहीं मैं वैसे पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, रोल भी पिक्चर में आएगा और बहुत सारी सर्विसेज आएंगे अभी पिक्चर में। ठीक है। हम्म, ट्राई टू एक्सेस सर्वर बाय आईपी। हाँ अभी वही कर रहा हूँ। ओ यस, so if I राइट। now if I make changes in this server, so will it affect the first one? No, आप बताओ, करना चाहिए? नहीं नहीं। नहीं, राइट, क्योंकि हमने कोई लिंक तो सेटअप किया नहीं है ना। वी हाँ जस्ट हाँ, क्रिएटेड ए डुप्लीकेट सर्वर। तो इससे इससे हमारा एक डुप्लीकेट। हो गया कि अगर आपके पास कोई सर्वर है बट अगर आपको डुप्लीकेट सर्वर चाहिए और उसमें हाँ, काफी सारे steps आपको करने पड़ते हैं, राइट। व्हेन यू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन तो काफी सारे स्टेप्स हो जाते हैं, तो सारे हाँ, स्टेप्स आपको दोबारा से नहीं करने पड़े, राइट। तो वो बेसिकली है, जो आउटपुट है ओके, वो ये है कि आपको सारे एफर्ट्स नहीं करने पड़े एंड डुप्लीकेट सर्वर आपका ऑन टिप्स हो गया, राइट। अब देखो, हाँ ये जब एक बार किया, आज आपने किया, राइट। आप आई थिंक क्लास 4-5 क्लासेस से हम देख रहे थे, इन्हीं पे काम कर रहे हैं, राइट। बट जब आज आपने किया तो आपका फील अलग रहा होगा, राइट। आपने देखो एक वेबसाइट अपनी होस्ट कर दी है, इवन इफ यू वांट हाँ अपनी भी बढ़िया सी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, राइट। आप एक सिंपली बनाओगे और उस पर आराम से कर सकते हो इजिली मैनेज, और ये एक अलग ही फील है, मतलब कि हाँ ठीक है यार, हमने अपना कुछ वेबसाइट के पहले ये सब चीजें बड़ा डिफिकल्ट होता था। आपको आईपी लेना पड़ेगा, वेबसाइट होस्टिंग लेनी पड़ेगी और उसको सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ क्लाउड पे कितना इजीली मैनेज हो रहा है, हाँ, कॉस्ट भी राइट। तो है। कॉन्फिडेंस भी अलग आता है, बिल्कुल। एंड तो I प्रशांत, फॉर स्टैटिक पब्लिक आईपी जो कॉस्ट है वो कुछ कॉस्ट करता है क्या इसमें, एडब्ल्यूएस में? हाँ, इलास्टिक आईपी, इफ यू आर यूजिंग इलास्टिक आईपी तो अच्छा देखो, यहाँ पे परमानेंट आईपी के लिए होता है इलास्टिक आईपी, ठीक है। तो अभी ओके। क्या होगा श्रीनु, सॉरी एवरीवन, तो सोनू, इसमें क्या होगा, तनुज, इसमें क्या होगा कि अगर आप ये सर्वर रीबूट करोगे अभी, ठीक है, इसको रीस्टार्ट करते हो या इसको स्टॉप करके स्टार्ट करते हो, तो इसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक आईपी क्लियर हो गया, जिस आईपी को आप बाहर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो ओवर इंटरनेट। हाँ है आपका प्राइवेट आईपी, राइट। तो प्राइवेट आईपी क्या है, ये इंटरनल आईपी है। जब आप सर्वर को कनेक्ट कर लेते हो तो एक इंटरनल आईपी मिलता है, वो आपका प्राइवेट आईपी हो गया। अभी अगर हमको सॉर्ट आउट करना है ये इशू कि अब आप मान लो वेबसाइट होस्ट कर दी एंड आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया इस सर्वर पर, ठीक है। तो सपोज करो वेबसाइट है sonu.com, ठीक है, एंड वो सर्वर पे होस्टेड है, पॉइंटेड है। अब आपने सर्वर रीबूट किया तो आपका आईपी चेंज हो गया, तो आपकी वेबसाइट काम करना बंद कर देगी, राइट, क्योंकि आपके हाँ, सर्वर का आईपी चेंज हो गया, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस के लिए आप इलास्टिक इलास्टिक। आईपी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इलास्टिक आईपी काइंड ऑफ सेम स्टैटिक आईपी या परमानेंट आईपी। देन जो उसका कॉस्ट है, अगर आपका सर्वर रनिंग है, इफ योर सर्वर इज रनिंग, ठीक है, तो और आपने उसको एसोसिएट किया हुआ है, तो देयर इज नो कॉस्ट,
लेकिन अगर आपने इलास्टिक आईपी परचेज किया है और आपने उसको एसोसिएट नहीं कर रखा है एक रनिंग सर्वर के साथ में, ठीक है, और वो फ्री है या सर्वर जिसके साथ अटैच किया है वो स्टॉप है, तो उसका कुछ मंथली कॉस्ट है, $2-3 मंथली अराउंड आपका चार्जेस उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि इलास्टिक आईपी पेड होता है, बट अगर रनिंग सर्वर के साथ यूज कर रहे हो तो वो उसका कॉस्ट नहीं है, और अगर उसको आप विदाउट उसके कर रहे हो तो यू हैव टू पे सम मनी फॉर दैट, राइट? ऐसे तो एक इलास्टिक आईपी भी इसको अटैच कर दो अभी, ओके टू इलास्टिक आईपी और एक इलास्टिक आईपी एलोकेट कर देना, तो लेट वी विल बी एबल टू कवर इलास्टिक आईपी की क्या है, राइट? एक बार रिपीट करिएगा कि आई मीन इलास्टिक आईपी का क्या बेनिफिट है? इलास्टिक आईपी का क्या बेनिफिट है कि अगर अभी आपने सर्वर को अभी एलोकेट इलास्टिक आईपी करो, अभी इस केस में क्या होगा कि अगर आप सर्वर रीबूट करते हो तो आपका आईपी चेंज हो जाएगा, बट अगर आप इलास्टिक आईपी यूज करते हो तो आपका आईपी परमानेंट है, जो सर्वर को आपने आईपी असाइन किया है वो परमानेंट है एंड इट विल नॉट गेट चेंज। तो आईपी चेंज होने का मेजर जो नुकसान है वो क्या है? एक्सेसिबल तो है ही वो पब्लिक में, नुकसान है, चेंज होने के बाद भी। हाँ, तो सपोज करो आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है और आपने सर्वर को अटैच कर दिया उस हाँ वेबसाइट के साथ, तो कभी भी वो वेबसाइट खुली जैसे जैसे तनुज.com और वो सर्वर का अभी आईपी क्या है, अभी आईपी देखो क्या है सर्वर का, अच्छा दूसरे दूसरे विंडो में है ना इंस्टांस का आईपी, दूसरी टैब पे जाओगे तो इंस्टांस का आईपी है, हाँ ठीक है, इसका देखो पब्लिक आईपी क्या है, हाँ ठीक है वहीं पे था, जाओ जाओ जाओ, ओके सेम उसी जो लास्ट इंस्टांस पे गए थे, अरे यहाँ से नहीं, जो सेकंड टैब है आप जो अभी गए थे ब्राउजर पे गए थे ना सेकंड टैब में, हाँ ये, यहाँ ओके ओके ये वाली, हाँ ओके यहाँ से अरे हाँ ठीक है, मान लो हाँ इस पर गए, ठीक है, तो अभी ये पॉइंट कर रहा है 248.176 को, ठीक है, हाँ अब ये आगे एक सर्विस लर्न करेंगे राउट 53 जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस आपके नेम को कैसे आईपी के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, तो आप हाँ बोलोगे कि जब भी तनुज.com खोला तो ये जाएगी इस सर्वर पे, इस अब ये आईडी पे। चेंज हो गया, बिल्कुल, अब ये सर्वर का आईपी चेंज हो गया, ठीक है, हाँ तो हाँ अनुज मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो वेबसाइट काम करेगी या नहीं करेगी अगर इस करेगी सर्वर वेबसाइट। नहीं करेगी कैसे, ना, बिल्कुल आईपी चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ तो जो आईपी पॉइंट, चेंज हो जाएगा। देखो अगर कैसे काम करेगी आप बताओ, सोनू आप बताओ कैसे काम करेगी, क्योंकि आईपी चेंज हो जाएगी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी इससे, तो फिर नहीं करेगी। ओके ऑब्वियसली जो आपका सर्वर है जिस पे वेबसाइट होस्टेड है, तो अभी आप सर्वर का आईपी खोलते हो तो ये वेबसाइट खुल जाती है, हाँ अब ये सर्वर का आईपी चेंज हो गया, ठीक है, अब मान लो ये हो गया 178 हो गया लास्ट में, ठीक है, तो अब जो वेबसाइट आपकी होस्टेड है वो तो 178 पे होस्टेड है ना, हाँ ये वाली 176 नहीं करेगी। तो नहीं करेगी, बंद हो जाएगी, तो यही आपका नुकसान है कि आपकी कोई वेबसाइट है, अगर वो आपकी वेबसाइट बंद हो गई, अगर आपने आईपी चेंज हुआ तो वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, ठीक है, तो इसके लिए हमको परमानेंट आईपी चाहिए होता है, पुरानी वाली आईपी पे, हाँ परमानेंट आईपी ओके। चार्जेबल है, ठीक तो है, अभी इलास्टिक यहाँ पे तो यहाँ पे आपने बोला पूल ऑफ IPv4 से आपको एक आईपी चाहिए, ठीक है, गो डाउन, एक्सेलेरेटर कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है, गो डाउन, टैग्स टैग आपको कोई टैग देना है तो दे सकते हो और एलोकेट करोगे, ठीक है, तो ये किसको टैग दे रहे हो, इलास्टिक आईपी को टैग दे रहे हो, नेम, नेम की पेयर हमेशा आपका यहाँ पे रहेगी, नेम रहेगा और वहां पे कुछ वैल्यू रहेगी उसकी, की पेयर पे काम करेगा, ठीक है, एलोकेट कर दो,
चलो गुड। तो अभी उस सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा ना इसे? अब देखो अभी आईपी मिल गया, उसको अटैच कर, राइट? तो गो टू एक्शंस, एसोसिएट एसोसिएट, यस। विद दैट इंस्टेंस। वो एक ही है तो यहाँ पे एक वो कर लिया। ओके। हाँ, अदरवाइज क्या होता है कि जितने भी सर्वर्स हैं वो आपको शो कर देगा और उन सर्वर्स को आप अटैच कर सकते हो। बिल्कुल। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस उसको कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट टू यूज कर सकते हो। वो दिखा रहा है कि ये आईपी है ना? ओके। तो ये अच्छा, किसके लिए अलाउ दिस इलास्टिक आईपी टू बी रीएसोसिएट। तो अगर आप चाहते हो कि ये आईपी रीएसोसिएट हो, राइट? रीएसोसिएट मतलब स्पेसिफाई वेदर द इलास्टिक आईपी कैन बी रीएसोसिएटेड विद अ डिफरेंट रिसोर्स। इफ ओके। मतलब ऑलरेडी एसोसिएट है तो क्या हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं डिफरेंट से? तो हमें जरूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब देखो अगर उसका आईपी चेक करोगे ना, सर्वर का आईपी को रिफ्रेश कर लेना, उसका इलास्टिक आईपी चेंज हो जाएगा, मतलब आईपी चेंज हो जाएगा अपने वहां जो पे आपने जाके सर्वर में हाँ, डिस्टेंस में सर्वर पे जाके आईपी देखना चेक कर होगा। करेक्ट। ये हो जाएगा 60.65.1.8। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हो गया चेंज। यस हो गया ना? अभी परमानेंट हो गया, हो गया। हाँ राइट? वो ये पे आ रहा है अब। हाँ और ओल्ड आईपी शायद काम करना बंद कर देगा अभी तक, नहीं तो अच्छा बाद में तो कर देगा। वो भी हाँ, अभी तो ये कैशे से उठा रहा है, बस वो नहीं ये नहीं कर देखो रहा है। हाँ स्टॉप हो गया, राइट? हाँ कोई अभी नहीं रहा आपका है। फिक्स कर दिया तो इट विल वर्क परमानेंटली, है ना? तो चेंज नहीं होगा चाहे सर्वर पे आपको कुछ भी काम करना हो। तो ये होता है कि हमको परमानेंट आईपी चाहिए तो वी विल यूज इलास्टिक आईपी। ओके। ठीक है, चलो बढ़िया, गुड जॉब, गुड गुड, बढ़िया, राइट? सो दिस इज नाइस। एवरीवन, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? बता दो। नो आई थिंक बेटर हुआ कि आपने प्रैक्टिकल किया। यस एनी क्वेश्चन और आई कैन मूव फर्दर? आई थिंक वी कैन और श्रोनु और तनुज। तनुज, पवन, भूपेंद्र तो आई थिंक नहीं है, शेनु, वी कैन मूव फर्दर? या प्रशांत, we can. चलो ओके गुड। Pricing model, Okay, are you able to see my screen now? यस yeah, ठीक है, तो देखो अभी what we have covered, we know how to connect Linux server via putty and puttygen, we know basic Linux command, we know how to host a sample website, right? Now एक चीज आती है how to increase volume size, right? And how to create a snapshot or backup. So we will see that. Then what is AMI? Now we know. Security group we know.
Elastic IP we know, public IP we know, right? Create free tier Windows और Unix server installation with a test website. So हमने एक Windows server या Linux server पे हमने काम किया. If you know want to do it on Windows, try करना. कुछ issue आए तो मुझे बताना, right? But Linux server जो popular है वो हमने देखा और उस पे हमने test website भी host किया. How to run Windows server? Now we know, right? Now we need to check how to add or remove some disk to a server and how to take backup and restore using a lifecycle policy. ठीक है, तो हाउ टू इंक्रीज ए वॉल्यूम साइज. कई बार ऐसा होता है आपका सर्वर्स का डिस्क वो हो गया, फुल हो गया, ठीक है, एंड यू नीड टू इंक्रीज द साइज. तो जो पहले प्रोसेस था उसमें क्या था कि आपको जो फिजिकल बॉक्स होते थे, फिजिकल सर्वर्स होते थे, वहां पे आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी होती थी एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए. या फिर आप क्या कर सकते थे, आप अपना जो उसमें डिस्क लगा हुआ है, जो करंट डिस्क लगा हुआ है, उसमें एक दूसरा एक्स्ट्रा डिस्क लगाते थे, मतलब उसको निकालते थे, उसका डेटा दूसरी किसी डिस्क पर कॉपी करते थे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल था ना, तो दूसरी किसी डिस्क पर कॉपी करते थे और उसके बाद एक बड़ी डिस्क से उसको रिप्लेस कर देते थे. मतलब सपोज करो कि आपके पास 8 GB की ड्राइव लगी हुई थी और आपको वो 20 GB से रिप्लेस करना था, क्योंकि आपको साइज इंक्रीज करना है. तो आपने डिसाइड किया 8 GB, उसकी जगह एक 20 GB की डिस्क लगाई और वो 8 GB का डेटा जो है वो 20 GB की डिस्क पे कॉपी कर दिया. दिस वाज द ओल्डर प्रोसेस. अभी क्या है, सपोज करो ये आपका सर्वर है, राइट, एंड इसमें स्टोरेज लगी हुई है अभी 10 GB, ठीक है, 10 GB स्टोरेज लगी हुई है. आई थिंक गाइस, सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज हो. सो 10 GB आपकी स्टोरेज लगी हुई है, राइट, एंड यू नीड टू चेंज इट, यू नीड टू चेंज इट टू, सपोज ये फुल हो गया, राइट, सो व्हाट यू विल डू, चेक कर लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं SSH क्लाइंट EC2 कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है. चलो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, SSH क्लाइंट से कनेक्ट कर लेते हैं. कॉपी किया इसका IP क्या है, कॉपी किया, पर गए, तो इसके लिए आपको लाइनक्स का, बेसिकली लाइनक्स का कमांड्स हैं, लेकिन स्पेस वगैरह बढ़ाना है या देखना है तो आपके पास भी रोल रहेगा, तो यू कैन चेक. ठीक है, इसका साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया, ठीक है. तो कमांड होते हैं df-kh. अभी दिखा रहा है आपकी डिस्क कितनी है यहाँ पे. जो प्राइमरी डिस्क है देखो /dev/xvda2, ठीक है, 10 GB है. ये 10 GB की आपके पास एक डिस्क लगी हुई है, ठीक है, और मुझे इसका साइज कितना करना है, 15 GB करना है, 20 GB करना है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको 20 GB कर देते हैं, ठीक है. तो 20 GB करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, मैं इंस्टांसेस में जाऊंगा, ये सर्वर सेलेक्ट किया, स्टोरेज में गए, वॉल्यूम्स में गए और वॉल्यूम्स में इस वॉल्यूम पे क्लिक किया. तो इसके साथ 2 वॉल्यूम अटैच है, तो जो वॉल्यूम है फर्स्ट वॉल्यूम, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एक्शन में गया एंड मैंने क्लिक किया मॉडिफाई वॉल्यूम, मॉडिफाई वॉल्यूम, और अभी मैंने इसको क्या किया, 10 से अराउंड 20 GB कर दिया, ठीक है. अभी मेरा स्टोरेज का साइज कितना हो गया, चेंज हो गया, डायरेक्ट मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है. अब मेरे पास जिसका सर्वर का साइज है
वो हो गया 20 GB। ठीक है, ये रहा फर्स्ट लाइनेक्स सर्वर। अब देखो, अगर मेरे पास टैग्स नहीं होते तो आई कांट आइडेंटिफाई कि भाई ये क्या है, मतलब मुझे दिक्कत होता। फिर मुझे क्या करना पड़ता, इंस्टांसेस में दोबारा जाता, फिर देखता वहां से कौन सा वॉल्यूम अटैच है, राइट। तो इसलिए हमको टैग्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत छोटी चीज होती है लेकिन बहुत यूजफुल है, राइट, बहुत काम की चीज है ये। मैं यहाँ से कर सकता था, मैं यहाँ से वॉल्यूम सिलेक्ट करता कि इसका वॉल्यूम क्या है। ओके, इसका वॉल्यूम आईडी है A2F0, तो मैं इसको कर ओके लेता। बट अगर मेरे पास टैग है तो टैग से मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता, राइट। तो अभी ये 20 GB हो गया, डिस्क का साइज इजीली चेंज हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे 10 GB ही है, 10 GB। अभी चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो इसको अगर आपको यहाँ पे शो करना है तो क्या कर सकते हो। अब देखो द बैकएंड क्या हुआ। एक कमांड होती है LSBLK, ये क्या करेगा, आपको जितने भी वॉल्यूम्स अटैच है, जितनी भी डिस्क अटैच है, उसके साथ आपको शो कर देगा कि कितना है पोर्शन, राइट। तो यहाँ पे XVD अगर आप देखोगे तो अभी कितना हो गया, 20 GB हो गया, 20 गिग हो गया, राइट। अभी टोटल मेरे पास डिस्क कितने हैं, 20 गिग। उसमें से मैंने एक पार्टीशन जो है 10 गिग का बना हुआ है जो रूट पर है, राइट। तो इसको हमें एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या करोगे, तो एक्सटेंड करने के लिए आप इसका AWS का डॉक्यूमेंटेशन देख लो, वहां से आपको पता लग जाता है। AWS एक्सटेंड डिस्क, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लो, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके इजीली उसको कर सकते हो। वाई आई एम टेलिंग, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली जरूरत पड़ता है, राइट। आप हर कमांड तो याद नहीं रख सकते। लेकिन जो 20 GB मैनुअली तो वहां से भी तो ऐड किया है वो। तो वो AWS अभी एंड पे हो गया, हाँ AWS एंड किया, राइट। बट वो वहां पर नहीं हाँ हुआ ना। हाँ, सर्वर के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, रिफ्लेक्ट तो कर दिया है। LSBL की अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो 20 गिग का आपका डिस्क आ गया, राइट। हाँ बट जो वॉल्यूम आपने बनाया था इंटरनली OS का तो काम आ गया ना। अब ये काम क्या करते हो, नॉर्मली क्या होगा कि एक आपके टीम में या आपके उसमें एक लाइनक्स टीम होगी जो इसको हैंडल कर लेगी। एज ए AWS एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम खत्म हो गया कि भाई मैंने अपना इंक्रीज कर दिया स्पेस एंड नाउ इट इज अपीयरिंग हेयर, ठीक है। तो आपका काम यहाँ पे ओवर हो गया। अब यहाँ पे OS टीम का काम आ गया। अगर विंडोज है तो विंडोज की टीम, या लाइनक्स है तो लाइनक्स की टीम इस स्पेस को इंक्रीज कर देगी यहाँ पे, क्योंकि ये 10। OS को नहीं हुआ है। ओके आप समझ रहे हो, इस रूट पोर्शन को असाइन नहीं हुआ है ना, ओके इसलिए। ओके। तो वो लिनक्स के थ्रू ही होगा कमांड। वो लिनक्स के थ्रू होगा, उसको लिनक्स की कमांड आनी चाहिए। हाँ ओके, वो माउंटिंग वाला ओके। हाँ, माउंटिंग वाला। ऐसे ही आपको नया डिस्क ऐड करोगे तो वो भी माउंट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, देखो यहाँ पे वेरीफाई कर लिया हमने, LSBL के चला के हमने वेरीफाई कर लिया। अब ये दिखा दिया है, राइट। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, टू एक्सटेंड द फाइल सिस्टम ऑन ईच वॉल्यूम यूज द करेक्ट कमांड फॉर योर फाइल सिस्टम। वहां पे डिफरेंट फाइल सिस्टम होते हैं, हम जो यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट XFS होता है। XFS को यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, XFS के थ्रू आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल डेटा आर वॉल्यूम माउंट पॉइंट शोन इन दिस, एंड यहाँ पे स्लैश को हमने माउंट पॉइंट है ना, तो इसको हमें एक्सटेंड करना है। तो मैं क्या करता है, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसको देखते हैं, ग्रो पार्ट कमांड को आप यूज करोगे तो ग्रो पार्ट के थ्रू आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ sudo ग्रो पार्ट, sudo ग्रो पार्ट, देन जो हमारा पार्टीशन है वो क्या है, XVDA2, राइट, XVDA। तो वन वन
पीछे वाला रहेगा। बस 1 मिनट में वही देख रहा हूँ। NVMe 011 Me 0 and 1 ठीक है। तो पार्टीशन साइज हमारा ओके है। यहाँ पे हम आगे चलते हैं और आप ग्रो एफएस कमांड को यूज करोगे। और 10 GB है वो भी। 10 GB है। इसमें साइज का लिमिटेशन आ रहा है, अदरवाइज ये आपका इजी हो जाता, लेकिन अभी हो जाएगा। तो आई शो यू नेक्स्ट क्लास, बट ये आपका पार्टीशन चेंज हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन सिंपल फॉलो करोगे, आपका इजीली हो जाएगा। इसमें है क्या कि आपका जो पार्टीशन था, सबसे पहले आपको ग्रो पार्ट कमांड आपको चलाना पड़ेगा। ग्रो पार्ट से आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि जितना भी स्पेस है वो आपको पूरा का पूरा स्पेस मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे आपकी कमांड चल जाएगी, ग्रो पार्ट कमांड आपका काम करेगा। तो यहाँ फिर पे दिक्कत, हाँ, कुछ कह रहे हो? 20 GB हो जाएगी फिर वो सीधी 10 GB से। 20 GB हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो कि जो XVDA है, ठीक है, XVDA जो है वो आपको एलोकेट हो जाए। XVDA डिस्क जो है आपका, अगर मैं यहाँ पे LSBL की कमांड शो करता हूँ, इसके साथ जो पार्टीशन अटैच है कौन सा है, XVDA2 डिस्क है ना। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये 10 गिग में हो जाए, ये 10 गिग इसका साइज है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये ग्रो हो जाए जितना भी स्पेस अवेलेबल है। तो स्पेस कितना अवेलेबल है, 20 गिग अवेलेबल है, हाँ राइट। तो यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे इशू आ रहा है कि इसके पास एक वैलिड पार्टीशन टेबल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये फेल कर रहा है, राइट। तो ये एरर मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। नॉर्मली एरर आता नहीं है, अगर आप नया डिस्क बनाते हो तो वो आपको इजीली फॉलो आप इसको कर सकते हो, सेम स्टेप्स चलेगा, आपका फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरर, इसको चेक करके मैं बता दूंगा, बट आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे एंड यू कैन इंक्रीज द साइज इन OS एज वेल, राइट। या आप OS टीम को बोल दोगे कि भाई आप चेक करोगे, क्योंकि होगा क्या, आपके पास काफी सारे लाइनेक्स का, मतलब लाइनेक्स की एक्सपर्ट नॉलेज आपको चाहिए पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ रेड सेटअप किया हुआ है या कुछ और चीजें हैं तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, राइट। तो आपका जो काम है वो वहां पे क्या है, आपका काम है यहाँ पे डेटा अटैच कर देना, आपको डिस्क का साइज इंक्रीज करना। तो आपको डिस्क इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, आपको सिर्फ वॉल्यूम पे जाना है और मॉडिफाई वॉल्यूम पर क्लिक कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका काम वहां पे रहता है, उसके बाद आप हैंड ओवर कर देते हो। बट एज आई सजेस्ट कि भाई आपको लिनक्स आना चाहिए, तो अगर आपको पता है तो इट इज नॉट हार्मफुल, आपके लिए फायदा ही है, राइट। तो हम लोग इसको कवर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसको ओएस में कैसे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है
एक रिक्वायरमेंट क्या हुआ, ये हुआ कि हमें सर्वर का डिस्क कैसे रीसाइज करना है। तो रीसाइज करने के लिए सिंपली आपको मॉडिफाई करना है, राइट, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मॉडिफाई करना है। देन उसके बाद आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है हाउ टू क्रिएट स्नैपशॉट और बैकअप। बैकअप हम कल करेंगे, डिटेल में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब मंडे। एंड उसके बाद आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आती है हाउ टू ऐड और रिमूव एडिशनल डिस्क। ठीक है, तो डिस्क अगर रिमूव करना है तो क्या करोगे, अगर सपोज करो मेरे पास ये सर्वर है और इसमें से एक डिस्क मेरे यूज की नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्टोरेज में जाऊंगा और मेरे पास कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, राइट। तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर मुझे डिटैच करना है, अभी देखो मेरे पास कितना, अगर मैं LSBL के चेक कर रहा हूं तो मेरे पास एक और डिस्क है, राइट, 15 गिग की। तो इसको अगर मुझे हटाना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इस वॉल्यूम को, और इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिटैच कर दूंगा। ये सर्वर को वॉल्यूम सिलेक्ट किया, एक्शन में गए और डिटैच वॉल्यूम। अभी मेरा सर्वर से वॉल्यूम यहाँ से ये डिटैच हो गया सर्वर से, राइट। अब देखोगे तो फर्स्ट लाइनक्स सर्वर में सिर्फ 10 GB। कितना है, सर्वर में अगर आप देखोगे तो एक 20 गिग की हार्ड डिस्क है। तो मैं अभी अगर LSBL की कमांड यहाँ पे चलाता हूँ, कितनी डिस्क रह गई मेरे पास, सिर्फ 20 गिग की रह गई, राइट। वो जो डिस्क है वो रिमूव हो गया, ठीक है। इसको रिमूव होने के बाद अगर तुम इसका स्टेटस चेक करोगे अभी, तो ये हो जाएगा चेंज होके अवेलेबल। क्या हो गया, वॉल्यूम स्टेट हो गया अवेलेबल, यूज में नहीं है, राइट। ये डिस्क क्या हो गई, ये हो गई अवेलेबल, ठीक है। इसको हम अटैच कर सकते हैं किसी भी सर्वर के साथ। और ये जो डिस्क है जो यूज में है, जो सर्वर के साथ अटैच है, उसका स्टेटस क्या होगा, इन यूज, ठीक है। अब एक छोटा सा चेंज यहाँ पे ये है कि अगर ये वॉल्यूम पहले क्या होता था, अगर ये अवेलेबल हो जाता था तो उसका स्टेटस हो जाता था ब्लू, ठीक है। बट AWS या किसी भी क्लाउड में जाओगे तो थिंग्स थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो इंटरफेस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये अभी ब्लू नहीं हो रहा है, ये आपको अवेलेबल दिखा रहा है खाली, बट ये आपको ब्लू में नहीं दिखा रहा है वो, राइट। तो ये एक छोटा सा चेंज है। तो आप जो अवेलेबल है आप उसको क्या कर सकते हो, वाई यू नीड टू पे एक्स्ट्रा मनी, है ना। अगर आप ये स्टोरेज यूज कर रहे हो, अगर आपके पास ये वॉल्यूम्स के अंदर स्टोरेज है, तो आपको इसका पे करना पड़ेगा अमाउंट। और एक्चुअली में क्या है, मेरे पास कोई सर्वर नहीं है, विंडोज सर्वर भी नहीं है देखो, और मेरे पास फर्स्ट लाइनक्स का ये डिस्क भी फ्री हो गया, दैट्स वाई ये दोनों आपको अवेलेबल शो कर रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको डिलीट कर, ठीक है। अदरवाइज आई हैव टू पे फॉर दिस, स्टोरेज में यूज कर रहा हूँ उसको पे करना पड़ेगा, देखो डिलीट हो गया, राइट। अगर वो इन यूज होता तो आपका डिलीट नहीं हो सकता। उससे पहले हमने एक डिस्क को देखो रीसाइज किया था, राइट। तो उसको वो रीसाइज क्यों नहीं हुआ, उसका एक रीजन ये है, ये अभी क्या चल रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है, ठीक है, इन यूज है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है नए साइज के अकॉर्डिंगली, राइट। तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से हम डिस्क को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, ओके। राइट। तो ये इशू है इसका, क्या है, क्योंकि मैंने साइज उसका चेंज किया, तो ओएस मतलब डिस्क लेवल पे साइज तो चेंज हो गया, लेकिन हमें उसमें कुछ कुछ तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन को वो सेट करेगा ना सर्वर पर, राइट। तो वो जो सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, मतलब रेडी कर रहा है। जब ये रेडी हो जाएगा देन वी विल बी एबल टू चेंज द साइज एज वेल ऑन ओएस साइड। अभी क्या है, अभी AWS साइज पे ये कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, और थोड़े टाइम में आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड। उसके बाद यू कैन जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन एंड यू कैन डू दैट। तो हमने मान लो अगर जैसे एक्स्ट्रा वॉल्यूम थी वो सर्वर में भी एलोकेट कर रखी थी कैपेसिटी उसकी,
उसके बाद हम उसको डिटैच कर देते हैं AWS में से, एक्स्ट्रा वॉल्यूम थी, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज होगा ना फिर ओरिजिनल उसका भी, तो उसके सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जिस समय change बिल्कुल किया था। बिल्कुल सेम चीज बिल्कुल। So it will ठीक है। get back to default then. डिफॉल्ट जो इसका जो फाइल सिस्टम था, सपोज करो फाइल सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम था XFS था ना, तो जो आपने नया ऐड किया है वो भी XFS ही हो जाएगा, राइट? Okay. वो भी XFS हो जाएगा, बट साइज अभी क्या है कि एक्सटेंड नहीं हो रहा है। रीजन बीइंग उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, राइट? उसके अकॉर्डिंगली तो OS पे तो अभी वो हो गया है 20 गिग, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, राइट? अभी वो कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं है क्योंकि अभी वो ऑप्टिमाइज कर रहा है, राइट? उसके जो फाइल सिस्टम है उसको सेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू XFS, राइट? तो इसलिए वहां पर एक्सटेंड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन तो अभी तक ओल्ड और कुछ मिसमैच है, राइट? जब ये रेडी हो जाएगा तो उसके बाद यू कैन फॉलो दैट। Okay. ठीक है, तो अभी दो चीजें समझ में आई कि आपको डिस्कस साइज अगर यूज करना है तो कैसे करोगे, और उसके बाद अगर आपको नया डिस्क ऐड करना है तो वो भी कल देखेंगे, राइट? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि आई थिंक 20 मिनट्स भी ऑलरेडी ओवर हो गए। तो हम लोग नया डिस्क कैसे ऐड करेंगे ये देखेंगे, एंड बैकअप कैसे इसको यूज करेंगे ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने ये समझा कि अगर आपकी जो करंट डिस्क है उसको कैसे आप रीसाइज कर सकते, राइट? हाँ। तो कल करते हैं इसको कंटिन्यू, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका मंडे रहेगा, ठीक है? तो मंडे में हम लोग EC2 से रिलेटेड जो हमारी टास्क हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टास्क हमारी कवर हो जाएंगी, एंड देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग, ठीक है? तो वो important. अगर आपके पास ये टास्क क्लियर हो जाती हैं, राइट, तो नॉर्मली दीज आर द एक्टिविटीज जो तुमको यूज करना पड़ेगा कंपनी में, राइट? तो आपको ये काफी कुछ आइडिया लग जाएगा, काफी कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाएगा सर्वर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये हम कवर करेंगे, देन वी विल मूव टू द further topic which is load balancer and auto scaling. load balancer and auto scaling means कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं आप यूज कर रहे हो तो अभी वो देखते हो तो डाउन नहीं होती हैं, राइट? रीजन बीइंग कि अगर सर्वर पे लोड भी इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वर्स ऐड कर देते हैं, न्यू सर्वर्स ऐड कर देते हैं ऑटोमेटिकली, राइट? आपको कुछ नहीं करना होता, बैक एंड से ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। और अगर सर्वर्स की जरूरत नहीं होती, लोड कम हो जाता है, तो हम सर्वर्स को रिमूव कर देते हैं, राइट? तो ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं वाया लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा। तो इसको कंटिन्यू करेंगे वंस वी कवर EC2 सेक्शन, ठीक है? चलो कैच करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you everybody. Thank you. ओके Thank you everyone. Bye.